Good evening, students. So, this is your first class of English. For that, you have to open your English books, Kumar Bharati of Standard 10th. Okay. So, your first lesson is Unit 1, Where the Mind is Without Fear. So, students, this is the poem written by Rabindranath Tagore. In this poem, what Rabindranath Tagore has explained, we will read the poem and one by one I will explain you. Okay. So, first, let us know something about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in 1861 and he died in 1941. He was the author of Gitanjali and it's profoundly sensitive, fresh and beautiful. So students, here are some words which I have underlined that you have to underline and find out the meanings. I am telling you the meanings. मैं आपको meanings explain कर रही हूँ and you have to find out the meanings from your dictionary and you have to note it in your notebook. Okay, you have to make two notebooks. Let I make you clear that you have to make two notebooks. One is for literature part, means this book, and one is for grammar part. Okay, or you can take one notebook and divide it into two parts. Okay, now listen. So this is the poem written by Rabindranath Tagore. Who was Rabindranath Tagore? Everyone knows. I think everyone knows. सबको पता ही होगा Rabindranath Tagore कौन थे. Rabindranath Tagore was born in 1861 and he died in 1941. He was the author of Gitanjali. There was a very famous book and it's profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Profoundly sensitive, underline this words. It means गंभीरता पूर्वक. Profoundly means गंभीरता पूर्वक and sensitive means बहुत ही sensitive, बहुत ही नाजुक. Fresh and beautiful verse, underline the meaning of verse. Verse मतलब होता है कि हम जो लिखते हैं किसी एक बुक में ढेर सारी कविताओं का लिखा होना जिसके साउंड्स रिदम सेम हो. कविताओं में रिदम सेम होता है तो उसको कहते हैं वर्स. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले नॉन यूरोपियन थे जो कि नोबेल प्राइज जीते थे 1913 में. ओके, दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम. ये जो पोएम है ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और डिस्कशन वाली पोएम है इनकी, उनमें से एक है. ओके, इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश. ये पोएम जो है ये इन्होंने बंगाली में लिखी थी और उसके बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी. दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एनाथोलॉजी गीतांजलि. ये पोएम गीतांजलि में से ही एक, गीतांजलि में जो ढेर सारी पोएम्स लिखी हैं, कई सारी पोएम्स लिखी है, उनमें से ही एक है ये पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ओके, नाउ टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश. टैगोर उस समय के पोएट हैं जबकि इंडिया, हमारे देश पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती थी, अंग्रेजों की. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. उस टाइम पर जबकि इतना ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे देश में इतना ज़्यादा हमारे पर शासन था, उसके बाद भी टैगोर ने अपील की थी, गॉड को अपील की थी, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इंडिया के लोगों को सोशल मतलब सामाजिक, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक और इकोनॉमिक मतलब पैसे की फ्रीडम मिले हमारे इंडिया के लोगों को. तो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, नाउ लेट अस रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ओके, फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग इट यू underline these meanings and I want the meanings written in your own language, in your mother tongue also. If you are comfortable in Hindi, you can write in Hindi also and English also. So you have to write it in your notebook and here are many more meanings that afterwards I will explain you. Okay, where the mind is without fear and the head is held high. तो इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर हमें क्या बता रहे हैं? जहां पर हमारा दिमाग, फियर मीन्स डरा हुआ से, किसी डर से हटके हो, जहां पर हमारा दिमाग किसी डर से हटके हो और हमारा सर ऊंचा हो. वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां हमें ज्ञान फ्री में मिले, जहां हम फ्री में अच्छी चीज़ों को जान पाएं. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पर फ्रैगमेंट्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, जहां पर हमारी दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी नहीं गई है, चाहे वो जात हो, चाहे वो रिलीजियन हो, उसके धर्मों में. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की मीनिंग यहाँ मिलेगी आपको, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम पर
डिवाइड करना मीन्स बांटना, कास्ट जात के नाम पर, क्लास श्रेणी के नाम पर, कलर इन सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर हमारे दुनिया बटी ना हो, यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं. ओके, so this also meanings you have to learn and write in your notebooks. Okay, these meanings which are given here. Okay, where words come out from the depth of truth. Okay, before coming into the next para, first I would like to explain you properly. I would like to explain the summary of this para and अच्छे से आप लोग समझो ताकि इसकी समरी आप खुद से लिख सको अपने ओन लैंग्वेज में. Where the mind is without fear and the held is head high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall. वो ऐसी एक दुनिया देखना चाहते हैं, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी एक दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ पर हमारा मन बिना किसी डर के रह सकता है और हमारा सर ऊंचा करके हम रह सकते हैं, जहाँ हमें ज्ञान, अलग अलग तरीके के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जहां हमारी दुनिया को धर्म और जातियों के नाम पर बांटा नहीं गया है. रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी एक दुनिया देखना चाहते हैं, वो अपील कर रहे हैं गॉड से, जहां की पहले कहा गया है कि अपील कर रहे थे. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर जो भी हम बोले वो पूरी सच्चाई के साथ बोले. वेयर टायरलेसली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, टायरलेसली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, इट्स मीनिंग इज सी टायरलेसली स्ट्राइविंग मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, जहां हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स और स्ट्रगल्स मीन्स कोशिश करते रहें और स्ट्रगल करते रहें. ओके, टायरलेसली स्ट्राइविंग्स का मीनिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, एम्स एट अचीविंग अ गोल, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो हमारे एम्स होते हैं, जो हमारी योजना होती है. ओके, वेयर टायरलेसली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां हम बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल करें और अपने गोल को प्राप्त कर सके. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पर हमें पता है हमें क्या करना है और हम भटके ना. ओके, इनटू लॉर्ड्स इट्स वे इनटू द रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. रेरी डेजर्ट का मतलब ये होता है, सी ये इसी पूरे फ्रेज में एक्सप्लेन होगा आपको. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम उससे भटके ना. इनटू किस में ना भटके, डेड हैबिट्स. डेड हैबिट्स का मतलब यहाँ है ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट्स आर हार्मफुल, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, जो धर्म के नाम पर लोग हमसे जाति में सबको बांट रहे हैं, जहां पर हम भटके ना और हम सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्मों पर ध्यान दें और अच्छे कर्म करें. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पर हमारा दिमाग सिर्फ हमारे गोल्स को अचीव करने पर है और सिर्फ उन्हीं भगवान के सामने ही झुका है और किसी के सामने हमारा दिमाग या हमारा सर नहीं झुका. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट ऑफ एक्शन, एवर वाइडनिंग मीन्स फॉर एवर ब्रॉडनिंग ऑफ एन आउटलुक, हमेशा ब्रॉड माइंडेड रहना मीन्स जमाने के साथ साथ अपने माइंड को ब्रॉड करना, नैरो नहीं रहना, मतलब कस्टम्स, पुराने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, उसी फ्रीडम ऑफ हेवन मतलब कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स. यहाँ पर हेवन ऑफ फ्रीडम के ये कहकर हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें पूरी आज़ादी हो ताकि हम अच्छा सोच सकें, अच्छा बोल सकें, अच्छे काम कर सकें और दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकें. तो ये है इस पोएम की मीनिंग जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्लेन की है. मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. ओके, जहां पर माइंड बिना किसी डर से हम रह सके और जहां पर हमारा सर ऊंचाई के साथ और अच्छे के साथ रह सके, जहां पर हमें नॉलेज फ्री मिले. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अट इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां पर हम टुकड़ों में नहीं बटे हैं धर्म और जाति और कास्ट, क्रीड, कलर के नाम से, जहां पर हम जो बोले वो बहुत ही सच्चाई के. वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहां पर हम जो बोले वो बहुत ही सच्चाई और बहुत ही ईमानदारी के साथ बोले. वेयर टायरलेसली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पर हम इतनी मेहनत और स्ट्रगल करें कि हमें अपने गोल से अपना जो भी हमें अचीव करना है, हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सके अच्छे से. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर हमें क्लियरली पता है कि हमें क्या करना है और हम उससे कहीं भी भटके ना डेड हैबिट्स के चक्करों में, मतलब पुराने रीति रिवाजों के चक्करों में. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पर हमारा सर और हमारा दिमाग सिर्फ गॉड के सामने, दी का मतलब होता है गॉड, ओके, गॉड के सामने दुके. इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और हमेशा हमारे एक्शंस जो भी हम करें और जो भी हम सोचें वो जमाने के साथ ब्रॉड होते रहे, मीन्स जमाने के साथ बदलते रहें, जमाने को एक्सेप्ट करके वो उस जनरेशन को एक्सेप्ट करके बदलते रहे. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, उसी
हेवन ऑफ फ्रीडम का यहाँ पर मतलब वो ये समझा रहे हैं उसी स्वर्ग की दुनिया में जहाँ पर हम अच्छे से जी सकें, अपने मर्जी से सोच सकें, अपने मर्जी से रह सकें, धर्म जाति इन सब में ना बटे हों। मेरे कंट्री को उसी कंडीशन में हमारे कंट्री के लोगों को जगाओ, जागरूक करो। रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ये सारे हार्ड वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो, इनकी मीनिंग्स आप डिक्शनरी से ढूंढकर अपने मराठी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे वो उस लैंग्वेज में लिखो, और साइड में इंग्लिश में भी लिखना है आपको। इनकी मीनिंग्स ढूंढ लो, इनकी मीनिंग्स लिखो, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके।